Namaste and hello everyone. My name is Samita Banka. I am lecturer at Chemical Engineering at Sri KJ Polytechnic, Bharuch. You are going through Chemical Process Technology lecture series, specially designed for semester 3 students of GTU affiliated colleges, institutes and curriculum. This is the English version of this lecture series. We are doing this lecture series in English, Hindi and Gujarati. This particular lecture is on chapter number 4 of the curriculum that says polymer. Now let us learn about phenol formaldehyde. As the name suggests, it is made up of two different monomers, that is, one is phenol and other is formaldehyde. Phenol formaldehyde comes under the category of thermo settings. Let us first start with its properties and uses. Okay, तो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है। नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो अलग अलग मोनोमर्स है, एक फेनॉल है और एक फॉर्मल्डिहाइड है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जिसका मतलब ये है कि एक बार बनाने के बाद इसे हम दोबारा आकार दे सकते नहीं हैं। सबसे पहले हम इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज, so thermosetting, as I said, that is one set cannot be melted again. It has high mechanical strength, that is it can bear high forces. Heat resistance, it is a good insulator, heat insulator, good electrical insulator. um, Water resistant, even acid and organic solvent resistant hai. It is hard and brittle, that is it breaks easily. It's um, it can not be drawn into wires or sheets, or it does not have elasticity. Usually dark colored, that is black or brown. Dimensional stability, like once you give it a shape, that shape does not deform, you cannot deform that shape. And flame resistance, that is it does not catches fire. तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट। थर्मोसेटिंग, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार सेट होता है तो दोबारा बनाया नहीं, मेल्ट नहीं किया जा सकता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि कोई भी फोर्स वो बियर कर सकता है। हीट रेजिस्टेंस है, इट इज़ इट डज नॉट ट्रांसफ़र हीट, हीट का ट्रांसफ़र नहीं करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी है, यानी इंसुलेटर है। वाटर रेजिस्ट करता है, एसिड या किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो उनको ये रेजिस्ट करता है, उनसे इस पर कोई असर पड़ता नहीं है। कड़क होता है, आसानी से टूट जाता है, इसे इलास्टिक की तरह खींचा नहीं जा सकता, इसे वायर या शीट में बनाया नहीं जा सकता है। यूजुअली ब्लैक या ब्राउन कलर में मिलता है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, यानी कि एक बार जिस आकार में दे दिया गया है वो आकार में चेंजेस आते नहीं हैं। फ्लेम रेजिस्टेंस है, यानी कि आग पकड़ता नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू यूजेस। सो बिकॉज इट इज़ इन गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, यानी कि गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए स्विच, प्लग, सर्किट बोर्ड या इंसुलेटर्स बनाने में काम आता है। टेलीफोन का कास्टिंग है या नॉब है या बटन है, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। अधेसिव्स, यानी कि प्लाईवुड या लेमिनेट्स को स्टिक करने के लिए, टू स्टिक these wood fibers, we use phenol formaldehyde. In automobiles we use it for brake lining and clutches, और ऑटोमोबाइल में ब्रेक की लाइनिंग या क्लच के लिए यूज़ करते हैं। कोटिंग वार्निश, टू मेक कोटिंग्स एंड वार्निश, कोटिंग वार्निश बनाने के लिए। इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन यू फाइंड इट इन फाउंड्री बाइंडर्स, फ्रिक्शन मटेरियल्स, दैट इज वेयर यू वांट heat resistance or flame resistance, you make materials like that. You don't use much in industry because they are very brittle, easily they break, and they are used in furnitures and decorative laminates. So formica is one example. तो फॉर्मिका जो है वो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड ही है, जिसे फर्नीचर या डेकोरेटिव्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, लेट अस सी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं।
Very simple, as I said, two different monomers, phenol and this is formaldehyde. So there can be two formaldehyde or three formaldehyde. So if there are three formaldehyde, then they attach like this to phenol, and if there are two, then they like this. So if two formaldehydes are added to phenol, then we get a linear chain. If three of them are there, then we get a cross linked. This is like a network structure we talked about. We get such kind of a structure. तो जैसा कि डिस्कस किया था, दो मोनोमर्स के रिएक्शन से बनता है, एक है फिनॉल, एक है फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से एक्स का मतलब है यदि दो फॉर्मल्डिहाइड हुए तो इस तरह के दोनों तो इस तरह से दोनों साइड पे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर तीन है तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यदि दो फॉर्मल्डिहाइड अटैच हुए हैं फेनॉल से तो लीनियर चेन मिलता है। यदि तीनों अटैच हुए हैं तो इस तरह से नेटवर्क या क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। Reaction is very easy, only you have to remember phenol and formaldehyde, that is the name in the compound itself. बहुत ही आसान रिएक्शन है, बस आपको दोनों कंपोनेंट याद रखना है, एक फेनॉल है और एक फॉर्मल्डिहाइड है। ये जो स्ट्रक्चर बीच मिलता है हमें इंटरमीडिएट, उसे हम बोलते हैं मिथाइलॉल मोनोमर फॉर्मेशन। मिथाइलॉल मोनोमर फॉर्मेशन, जिससे कि हम फिर फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। Now let us see the process using this flow diagram. It is very simple. We use a batch resin kettle reactor which is jacketed, and the jacket contains cooling water because otherwise at high temperatures the reaction becomes uncontrollable. In terms of reactant, as we discussed, phenol, formaldehyde, they are added. A part of that, a solvent is added. Again, solvent can be isobutane or hexane. Catalysts and modifiers are added. The reaction temperature is maintained using the steam at the top and cooling water at the bottom. In the top, we need steam for reaction to take place. In the bottom, we want cooling water to reaction to terminate. After the reaction, we get resins in three forms. One is resins in solvents, which are used as laminating resins or coatings. Resins in solution, that is water solution, that we use for adhesives and coatings again. And remaining is molten resins, that is your actual phenol formaldehyde, which is again water cooled on a roller, and then it's spun like thread is being produced, and that thread is then mixed with hexamethylene tetramine, which is a lubricant that gives a soft coating over this phenol formaldehyde. And then these are stored again in this storage where we use plasticizers and fillers, and then again different rollers, and then we finally get a thermosetting molding powder in powder form that we can use after molding. बहुत ही फटाफट से इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड इसके रिएक्टेंट्स हैं, जो इस प्रकार के एक बैच रेजिन केटल रिएक्टर, जो कि एक CSTR तरीके का रिएक्टर है, बैच रिएक्टर है, उसमें डाला जाता है। ये बैच रिएक्टर का नीचे का तापमान कूलिंग वाटर जो कि जैकेट में पास हो रहा है उससे मेंटेन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। वेरेज जो ऊपर का भाग है उसमें हम स्टीम डाल के रिएक्शन के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इन दोनों रिएक्टेंट के अलावा सॉल्वेंट अगेन जो कि आइसोब्यूटेन या हेक्सेन हो सकता है वो डालते हैं। कैटलिस्ट या और मॉडिफायर भी अंदर इसी में डालते हैं। रिएक्शन प्रक्रिया के अंत होने के बाद हमें रेजिन्स तीन भाग में मिलता है। एक रेजिन हमें सॉल्वेंट में मिलता है जिससे हम लैमिनेटिंग रेजिन्स या कोटिंग्स बनाते हैं। दूसरा रेजिन्स हमें सोल्यूशन वाटर सोल्यूशन में मिलता है जिससे एडेसिव्स या कोटिंग बनता है। तीसरा मोल्टन रेजिन जो हमारा एक्चुअल फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, जिसे हम इस तरह के वाटर कूल रोलर से मूव करके एक इस तरह के कैलेंडरिंग शीट पे डालते हैं, और इस शीट को फिर हम आगे 200 मेश की साइज की स्क्रीन से पास करते हैं, और उसके बाद इसमें हम लुब्रिकेंट का एडिशन करते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग डालने के लिए। इस पूरी रेजिन को हम यहाँ स्टोर करते हैं और वहाँ पे फिलर्स और प्लास्टिसाइजर डाल के इसकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद इसे हीटिंग रोल में डाल के सेट करते हैं, और इस तरह के रोलर्स में डाल के उसे हम मोल्डिंग के लिए तैयार कर देते हैं। तो ये हुई पूरी फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड को बनाने की
प्रक्रिया। For the sake of understanding, let me read out the entire process description. So, phenol, formaldehyde, and catalyst are mixed in a jacketed autoclave resin kettle and heated with steam, typically 260 to 90 degrees. The reaction time is 1 to 3 hours. After reaction starts, the heat of reaction is removed by refluxing and water cooling. Uh, in the early stages of reaction, the heavier viscous resin separates at the bottom layer and the aqueous layer at the top. The resin part which is heavy is at the bottom and the one which is lighter in weight is at the top. Dehydration is the next completed in the kettle by combining combination of heat and vacuum. So by applying heat and vacuum, we actually remove the water vapor or moisture present in the final product. This fused resin at 130-150 degrees is removed from the kettle, cooled and ground to fine powder. So once this resin is prepared, it is removed from the kettle. It is cooled down on the calendar cooling rolls as I showed, and is then it is ground to a ground rolls is this crushed to into the powder form. The heat reactive molding powder prepared above can be mixed with fillers, coloring agents, lubricants, and catalyst in a ribbon blender or ball mill. So, a ribbon blender or ball mill is used to mix them and create the desired aesthetic, like we want to color you want to use, the uh, smoothness, the lubricacy you want, the catalyst kind of thing you want in that sense. It is then heated further on a pair of heating rolls to prepare fast curing commercial phenolic molding powder. एक बार पूरी प्रक्रिया का डिस्क्रिप्शन मैं पढ़ देती हूँ कि इसमें फेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और कैटलिस्ट मिक्स करते हैं एक ऑटोक्लेव रिएक्टर में, जैसा कि मैंने बताया है, जिसमें स्टीम जो है वो 60 टू 90 डिग्री टेम्परेचर देता है। पूरी रिएक्शन का टाइम 1 से 3 आवर है। एक बार रिएक्शन शुरू हो गया, उसके बाद हमने देखा था कैसे नीचे की तरफ कूलिंग था, तो कूलिंग किया जाता है जिससे कि रिएक्शन कंट्रोल में रखा जा सके। रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो हेवी विस्कस मतलब जो ज़्यादा डेंसर रेजिन होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ एक्वस लेयर वाला पानी में मिश्रित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो डिहाइड्रेशन करना है, उसके लिए डिहाइड्रेशन के लिए रिएक्टर में ही हम हीट देते हैं और वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं। ये जो डिहाइड्रेटेड फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड हमें मिलता है रेजिन के फॉर्म में, जिसका टेम्परेचर 130 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और पीस लेते हैं उसे पाउडर फॉर्म में। उसके बाद इस पाउडर में हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी स्ट्रेंथ चाहिए उस तरह का फिलर, या उसे कलर करना है, या उसको लुब्रिकेसी उसकी चिकनाहट बढ़ानी है, या उसे कैटलिस्ट के साथ मिक्स करना है, जो भी करना है वो सारी प्रक्रिया हम करते हैं एक रिबन ब्लेंडर या बॉल मिल में, और उसे दोबारा गर्म करते हैं एक रोलर पे, जिससे कि हम उसे कड़क बना सके, उसे एक थर्मोसेटिंग की फीलिंग दे सके, और फिर इस थर्मोसेटिंग पाउडर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर यही अंत होता है। थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आगे का लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। यदि इस प्रोसेस में कोई भी डिफिकल्टी है, प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स इन द योर क्वेरीज इन द कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।